Re- He's been the story to talk about bringing pride to the massive कुछ nation. ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। ये आखिरी बारी सोच के अब तू जान लगा दे, जा तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का ऐलान तू, बन जा मिसाल तू। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का ऐलान तू, बन जा मिसाल तू। तोड़ दे बेड़ियों को, ला जोश में अब खुद को, ये तेरा मौका है, जा जीत ले हर दिल को। ये शान तिरंगे की अब तेरे हाथ आई, लहरा दे आसमां में उस धरती पर आई। ये खेल है सपनों का, तुझे सच करना है, चाहे कितना खींचे वो तुझे ही लड़ना है। चल चल अपनी कमर कस ले अपने भारत के लिए, अब तुझको ही जीतना है, रग रग ये दम भर ले। लक्ष्य पे तू ध्यान दे, मन में तू ठान ले, तेरी ही होगी विजय, मंजिल तेरे सामने। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का ऐलान तू, बन जा मिसाल तू। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का ऐलान तू, जीत से जवाब तू। Presenting India, Bhavina Patel. She's been the story to talk about bringing pride to the massive कुछ nation. ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। ये आखिरी बारी सोच के अब तू जान लगा दे, जा तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का ऐलान तू, बन जा मिसाल तू। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का ऐलान तू, बन जा मिसाल तू। तोड़ दे बेड़ियों को, ला जोश में अब खुद को, ये तेरा मौका है, जा
Yes, sir. Actually, Ravi sir is like not able to connect to his Okay. audio, so we are just waiting for him. Yes, sir. Now the audio has been connected. I think Tarandur sir is also here, right? Yeah. Uh, Yes, sir. We are just waiting for Tarundeep, sir, and then I guess we can start, sir. Principal sir is also Sir here. is also here, sir. So, Bharti and Kumkum, you can start. Thank you so much. Greetings to everyone today. I am Bharti and my fellow colleague Kumkum are here to extend a warm welcome to all of you on behalf of the National Service Scheme Shaheed Bhagat Singh College, Delhi University. The National Service Scheme NSS is a central sector scheme of the Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. It provides an opportunity to the student youth of 11th and 12th class schools at plus 2 board level and student youth of technical institution, graduate and postgraduate at colleges and university level of India to take part in various government-led community services, activities and programs. The sole aim of the NSS is to provide hands-on experience to young students in delivering community service. We at NSS SBSC believe in saying that there is no freedom like running and there is no happiness like freedom. The theme for today's webinar is Freedom Run. The theme in itself highlights the significance of encouraging people to take up fitness activities like running and sports in their daily life in order to get freedom from stress, anxiety, and diseases. Now, I would like to request you all to switch on your cameras for a virtual photograph. Thank you so much, everyone. Now, to formally commence this session, we would like to introduce our honorable speakers for today's session, Mr. Tarundeep Rai and K. Ravi Kumar. Tarundeep sir made his debut in international archery at the age of 19 years when he played at the Asian Archery Championship 2003. He won India their maiden individual silver medal in archery at the Asian Game and at Summer Olympics. He was placed 32nd in the men's individual ranking round. Sir was also a member of 11th place Indian men's archery team at 2004 Summer Olympics. He gave our country third place in the London Olympics qualification round in 2012 in the UK. His team won the silver medal at 2005 World Championship in Madrid, Spain. He also became the first Indian to make it to the semi-final round of the World Archery Championship in 2005. He won 3 gold medals at South Asian Games in Guwahati and Shillong. Sir is the recipient of Arjuna Award 2005 for his achievements in archery, and in 2020, the Government of India honored him with Padma Shri. Our next honorable speaker for today's session is Mr. K. Ravi Kumar. Sir won 3 gold medals in 2009 Commonwealth Games held in Malaysia. Then in 2010, he won 3 gold medals at the New Delhi Commonwealth Games in the 69 kg weightlifting category. In 2011, he won 3 bronze medals in the Senior Weightlifting Championship in China. He also won 3 gold medals in the Senior Weightlifting Championship held at Bangalore. He competed for India at the 2012 Summer Olympics and won a silver at the 2014 Commonwealth Games. Now we would request Dr. Anil Sardhana sir to flourish blessings on us and present gratitude to our honorable speaker for the webinar. Okay, can you hear my voice? Yes, sir. It was muted actually, that's why. Anyway, so thank you very much. Thank you, Devansh, Mohul, Bharti, and other students for organizing this function. And my congratulations to the NSS team of Shaheed Bhagat Singh College being headed by Mr. Sandeep Kumar for
organizing this event. I am really feeling very happy after listening to the credentials as well as the bio of Mr. Tarundeep Rai as well as Mr. K. Ravi Kumar. Mr. Tarundeep Rai, at the age of 19 years, Asian game archery and Arjuna awardee. Mr. K. Ravi, 3 gold medal and gold medals again in Bangalore. And so I'm really very happy to be the part of this event. I am core of my heart. I am thankful to both of you, Mr. Tarundeep as well as Mr. K. Ravi Kumar, that you have spared time for our college and you have come join though in digital mode, because as you know that we have limitations, still the limitations are on. But we look forward to meet you very soon in our college along with students who are really very committed and dedicated. Their heart is at the right place. NSS unit Shahid Bhagat Singh College. They are always out to work and they are always out to help the society, and they have taken up many programs. They have taken up many social programs, and I really appreciate NSS unit. And now they are going to come up with their first ever magazine, e-magazine, and many more, मंजिलें और भी हैं इन सब के लिए, और आगे ये सब लोग जाएंगे. My compliments to Mr. Sandeep Kumar as well as the previous coordinators, Dr. Vinay Kumar and other teachers who have shaped it and given the time. I'm always there to help my students, and if any kind of help is needed, you are most welcome. But the NSS unit does not spend much money. They rather do the value addition. They are always there to organize the programs without spending much money. And so was done by Rajiv Ranjan Sinha also. His contribution is also commendable and worth appreciation. So once again, I welcome Mr. Tarundeep Rai as well as Mr. K. Ravi Kumar to today's function, today's event on importance of fitness. They are going to talk about Freedom Run, and they are going to tell us about fitness and health through sports, which is actually the requirement of today's youth in our country. As we have seen that when the Prime Minister has motivated the players this time, our results in the Paralympics and Japan Olympics are very good. The motivation should be taken from them as well as from today's speaker for all our students to improve their health, to improve their fitness. My compliments and my good wishes to all of you. Stay healthy, stay young, stay good always, and be happy. My blessings are with all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now we would request Tarundeep's valuable insights. रवि है यहाँ पे? हाँ, अभी मैं हूँ यहाँ पर. नमस्ते. नमस्ते. कैसे हो? सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन बताऊंगा कि फाइनली हम डायरेक्ट फेस टू फेस तो बात नहीं कर पा रहे थे. एनएसएस के थ्रू मैं आपके साथ ऐसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ. तो मैं कंप्लीट एनएसएस की टीम और शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को मैं धन्यवाद बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके थ्रू मैं तरुणदीप सर के साथ आफ्टर लॉन्ग बैक, मतलब अराउंड 10 इयर्स के बाद शायद मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ. तो थैंक यू सो मच. आपके वजह से मैं तरुणदीप सर के साथ मैं थोड़े से मैं बात कर पाया. आप ही छोड़ के गए थे मुझे. मैं तो जहाँ हूँ वही हूँ. जहाँ था आज भी वही. हाँ सर. Yes, sir. चलो, हैप्पी टू सी यू अगेन. हाँ रवि. थैंक यू सर. थैंक यू. सेम हियर सर. तो क्या बताना सही रहेगा फिटनेस के बारे में? टू मी फिटनेस सब कुछ है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी सर ने कहा कि काफी सारा ब्लेसिंग्स में स्टे यंग भी बोला था. तो स्टे यंग का भी यही अर्थ होता है. जवान रहना सबको पसंद रहता है ना. रवि को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, एंटायर इंडियंस यार वर्ल्ड को पसंद है कि जवान रहे हो.
कभी बुढ़ा ना हूँ। हाँ, लेकिन वो भी पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होता है, वो भी पॉसिबल है। एंड द ओनली वे टू स्टे स्ट्रांग और टू स्टे यंग इज टू मेंटेन योर फिटनेस, टू इम्प्रूव योर फिटनेस। और फिटनेस का काफी सारा एडवांटेजेस भी है, मैं मतलब सारे एडवांटेज ही एडवांटेजेस है फिटनेस में। सबसे पहले तो आप जवान होते हो, देन अगर आपका बॉडी फिट रहते हैं तो आपका माइंड भी फिट रहता है। यू कैन कंसंट्रेट वेल, है ना, यू कैन फोकस वेल, आपका माइंड भी स्ट्रांग रहता है, आपका माइंड भी वो फिटनेस का जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपका माइंड भी उसमें ट्रेनिंग होते हैं। एंड जब आपका बॉडी इज टोटली फिट, योर माइंड विल आल्सो वर्क लाइक नेवर बिफोर। मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जब भी मैं अनफिट रहा मेरा गेम डाउन रहा, और गेम डाउन होने का रीजन मेरा अनफिट रहने का नहीं, दिमागी तौर से मेरा ढीला होने का है। अब दिमागी तौर से ढीला होना मतलब मैं फिर दिमाग को कैसे वो करूं, ऐसा नहीं होता ना। पहले मुझे फिजिकल फिटनेस से लड़ना होगा, फिट करने से मुझे अपना फिजिकल को फिट करना होगा, देन ओनली वो अल्टीमेटली मुझे वो एक फिट ब्रेन भी मिल जाता है। तो ये चीज मेरा एक पर्सनल अनुभव था जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। राइट नाउ आई एम 37 years old, है ना। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि मैं जितना एज मेरा ज्यादा हो रहा है उतना मेरा रिकवरी स्लो हो रहा है। अब ये एक ही रीजन है दैट आई एम गेटिंग ओल्ड। बट लेकिन बाद में मैंने क्या पाया, जब मैंने अपना फिजिकल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया तो मुझे वो पुराना वाला तरुणदीप खुद को महसूस होने लगा। मैं रिकवरी बहुत जल्दी कर पा रहा था, है ना, मेरा दिमाग भी अच्छा, मैं आई वाज सो हैप्पी, है ना, दिमागी तौर से भी मतलब साइकोलॉजिकली भी आई वाज सो हैप्पी, बॉडी भी मेरा फिट दिख रहा है ना, आई वाज मतलब एक इनर कॉन्फिडेंस ये सब बूस्ट अप होता है। एंड सब कुछ मतलब फिजिकल फिटनेस से सारा कुछ बूस्ट अप होता है, नॉट ओनली योर माइंड, योर बॉडी, योर सराउंडिंग, एवरीथिंग। आपका फैमिली भी खुश होता है आप फिट रहते हो तो, अदरवाइज वो भी टेंशन रहता है कि यार कब बीमार पड़ जाइए, है ना। तो मैं अभी रवि को आप वो करता हूँ। रवि आप एक तो सब बोले, मैं थोड़ी देर में बोलूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी एनएसएस के और भगत सिंह के सभी यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को, सभी को मेरा प्रणाम। जैसे तरुणदीप सर ने कहा कि मेंटली फिट होने के लिए हमें फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। एज ए वेट लिफ्टर मैं आपको एक छोटा सा मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूंगा। देखिए, कहावत में भी है कि उगता हुआ सूरज को सभी सलाम करते हैं और जो डूबता हुआ सूरज को कोई भी नहीं पूछता है। तो सेम ऐसा ही है, मेरा स्पोर्ट्स लाइफ में भी ऐसा ही मैंने फेस किया था कि इन लंदन 2012 लंदन ओलंपिक्स मैंने ड्यूरिंग ओलंपिक्स मैंने 176 क्लीन करते वक्त मेरा रोटेटर कप कंप्लीट क्लियर हो गया था। सो उसके बाद मुझे ये चैलेंज आया था कि मुझे एनी हाउ सर्जरी करना जरूरी था। डॉक्टर आशीष मवलकर ने मुझे ये रिकमेंड किया था। तो एनी हाउ मैंने सर्जरी करा लिया क्योंकि मुझे आगे और भी गेम करना था। बट सभी का ये कहना था कि अगर वेटलिफ्टिंग में शोल्डर सर्जरी या नी सर्जरी वगैरह करने के बाद कोई भी कमबैक आज तक इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाया है, तो सभी ने ये कहा था कि मुझे वेटलिफ्टिंग में और नहीं कर सकता हूँ। रवि कुमार फिनिश हो गया है। इवन फेडरेशन भी, एसोसिएशन भी, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल्स, बट उसको मैंने एक चैलेंज में लिया और एंड आई एम प्रूव माई सेल्फ कि 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है मैं उसके लिए प्रिपेयर हुआ। 1.5 साल मुझे लगा पूरा फिट होने के लिए। मुझे रिहाब करना पड़ा, फिटनेस करना पड़ा, ट्रेनिंग करते रहना पड़ा। इवन मैंने जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट करता था मुझे हार, मतलब मैं गिव अप भी कर लेता था क्योंकि पेन इतना ज्यादा होता था। बट उसी को एक चैलेंज में लेके मैंने क्या किया, 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स को मैंने क्वालिफाई भी किया और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने इंडिया को मैंने सिल्वर मेडल भी दिया था। ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं मेंटली बहुत ही स्ट्रांग था कि मुझे एनी हाउ मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे अपने आप को फिट करना है। और जो जितने भी हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, उन सबको सिर्फ ये प्रूव कराना था और मेरी फेडरेशन, एसोसिएशन सबको ये बताना चाहता था कि अगर आपके दिल में गट्स है और मेंटली आप स्ट्रांग हो
और फिजिकली आप स्ट्रांग हो, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, क्योंकि आपने उतना मेहनत किया है, फुली डेडिकेट होके आपने मेहनत किया है, तो आप श्योर सक्सेस करोगे। तो वो मैंने चैलेंज करके मैंने प्रूव किया था। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा सभी जितने भी सारे यंगस्टर्स हैं, तो फिजिकल फिटनेस एक ऐसा लाइफ में अभी पार्ट हो गया है। इवन आप किसी भी कंट्री का आप देखेंगे, हमारा कंट्री बहुत पीछे है एज कम्पेरेटिव, मतलब स्पोर्ट्स को अगर देखा जाए, फिजिकल फिट तो छोड़ दीजिए, मतलब फिजिकल अगर स्पोर्ट्स, मैं ये कहूंगा कि स्पोर्ट्स को छोड़ दीजिए, एज अगर हम फिजिकल फिट के बारे में अगर हम ध्यान दें, तो आपके अगर कंपेरेटिव अदर कंट्रीज के बारे में देखेंगे, तो उनका एक जैसे हमारा नॉर्मल रूटीन लाइफ में खाना कंपलसरी होता है, सोना कंपलसरी होता है, काम करना कंपलसरी होता है, बट उनके लाइफ में एक चीज कंपलसरी होता है, फिटनेस। सो वो इसलिए फिटनेस करते हैं ताकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बेस्ट रहे, इवन उनका फैट परसेंटेज कम रहता है, उनका खाना पाना सब जो भी है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे कंट्री में भी सभी को अपने अपने लाइफ में 1 घंटा जो है, 1 घंटा, जैसे कि हमारे सभी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, सभी का यही रिकमेंड होता है कि हमारे लाइफ में 1 घंटा एनी हाउ करके हमारे फिटनेस के बारे में, मतलब हमारे शरीर के बारे में सोचना चाहिए और फिटनेस करते रहना चाहिए, ताकि जैसे सर ने भी, तरुणदीप सर ने भी कहा कि हमें अगर फिजिकल फिट रहे तो हम मेंटली भी फिट रहते हैं, तो हम जो भी काम करेंगे हम उसमें श्योर सक्सेस होते हैं। और सबसे बड़ा ये है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कोरोना का चल रहा है, काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितने सारे लोग हमारे चाहने वाले बहुत सारे ऐसे कि स्पोर्ट्समैन भी, काफी अच्छे स्पोर्ट्समैन भी चले गए। तो मैं ये कहूंगा कि फिजिकल फिटनेस से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होता है, जिस वजह से हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे लाइफ में 1 घंटा हमें तो फिजिकल फिटनेस के लिए निकालना चाहिए। रणदीप सर। अच्छा, ओवर टू मी। हम दोनों बात करते रहेंगे क्या? सर ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है या कोई भी पूछ सकता है तो हम उसका क्लियर कर सकते हैं। So we'll take the questions in last. Okay. बाकी हम क्या कह सकते हैं, आप सबको पता ही है फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें बताते रहना। इट्स लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कान से सुना दूसरा कान से उड़ा दिया, है ना? क्योंकि सबको पता है कि फिटनेस, फिट रहना होता है, फिटनेस करनी होती है। ये हम कितना भी बोले, जब तक आप लोग खुद से अंदर से वो भावना पैदा नहीं होता है, तब तक हम कितना भी बोले या आप कितने भी सुनो, दैट विल नॉट गोना वर्क, ठीक है ना? सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज, ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाना लाइफ में कि मुझे ये करना ही है ना, एक रूटीन में रहना है, मुझे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहना है, ऑब्वियसली ये सब। लेकिन आपको इसको नहीं करने का मतलब ये भी नहीं कि इनडिसिप्लिन्ड रहो, है ना, पूरा समाज को एकदम तोड़ के रखता है, ऐसा भी नहीं करनी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको अगर सुबह 6 to 7 नहीं कर सकते हो, यू कैन डू 6 to 7 शाम को, है ना? जैसे रवि ने बोला 1 hour, गिव योर 1 hour टू योर बॉडी, तो आप कभी भी दे सकते हो इसको। ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि आपको सुबह 4 to 5 ही देना है ना? वो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप लोग। मैं भी हुआ था फ्रस्ट्रेट, यार सुबह 4 to 5 देना या तो 5 to 6 देना है ना? आप फिजिकल फिटनेस की बात है, आपको सिर्फ पसीना निकालना है ना, आप कभी भी कर सकते हो उसको। तो ऐसा लाइफ में कभी रूटीन मत बनाना, तो एकदम, है ना, खुद को फ्रस्ट्रेशन उसमें, क्योंकि 12 महीने हर दिन आपको एनकरेज करने वाला नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा। इसीलिए आपको लाइफ में इतना कड़क रूल भी नहीं बनाना है कि जब आपका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो आप मतलब आपको उठाने के लिए कोई हो ना वहां पे। तो इसीलिए टेक इट इजी, लाइफ है, खुश रहे। और आप सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है उसको करते रहे और एक दूसरे को बांटते रहे, और क्या गलत है उसको कि जितना हो सके रिड्यूस करे अपने लाइफ से। यही एक लाइफ का सिंपल फॉर्मूला है, जहां मैं स्पोर्ट्स में भी यही समझता हूँ कि अपने कमी को हटाते रहना है और प्लस पॉइंट को बढ़ाते जाना है। और मुझे लगता है कि बाकी रियल लाइफ में भी ये सारा एप्लीकेबल्स होता है। तरुण सर, एक सवाल आया है कि हमारा यहाँ पर 1.3 मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया में, और हमारा कंटीजेंट्स इतने कम है रिप्रेजेंट में,
एंड मेडल टैली में हम बहुत पीछे हैं, जैसे पैरा ओलंपिक्स में और ओलंपिक्स में, नॉर्मल ओलंपिक्स में हमारा। सो इसका क्या रीजन है, ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं? मुझे क्या लगता है कि जो हमारा स्पोर्ट्स साइंस है इंडिया का, वो थोड़ा सा बाकी कंट्री से पीछे है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यूथ को 20-22 साल होने के बाद पता चलता है कि वो किस चीज में टैलेंटेड है। वो मतलब एक नेचुरल टैलेंट होता है, या ना बोला जाता है ना, एक इसके अंदर नेचुरल टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है, वॉट एवर इट इज। लेकिन साइंस को पता करने का ये जिम्मेवारी है, मैं जहां तक समझता हूँ। ये गॉड गिफ्ट क्या है भैया, हमको तो नहीं पता है ना, गॉड गिफ्ट कहाँ से आता है। लेकिन उसको 20-22 साल का उम्र में पता चलता है कि आई एम सो एक्सीलेंट इन दिस वर्क। अगर वही चीज 10-11 साल का उम्र में अगर उसको आइडेंटिफाई हो जाए और वो स्पेसिफिक उसी गेम के पीछे लग जाए, सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया का कंटिंजेंट भी बढ़ेगा एंड मेडल टैली भी बढ़ेगा। हमारा स्पोर्ट्स साइंस थोड़ा सा वीक है इस सेक्टर पे, मुझे लगता है, क्योंकि मेहनत जो है, स्पोर्ट्समैन मेहनत कम नहीं करते बिल्कुल। वर्ल्ड में जितने भी एथलीट्स है, मुझे लगता है इंडियन एथलीट उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, और उससे ज्यादा हार्डवर्क, उससे ज्यादा डेडिकेशन की उसमें करते हैं, और उससे ज्यादा भूख में इंडियन एथलीट ट्रेनिंग करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं। नो एथलीट पार्टिसिपेट है ना, सारे के सारे जीतने के लिए खड़े होते हैं, और इंडियन एथलीट सबसे ज्यादा जीतने के लिए एग्रेसिव होकर निकलते हैं, विच इज गुड आई थिंक। बट हम लोग कहाँ लैक कर जाते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ कम हो जाते हैं ओलंपिक जैसे क्षेत्र में। जैसे आपने बोला 1.3.5 बिलियन में 1.35 बिलियन में 128 ही लोग गए, तो 128 लोग जाने नहीं, 128 से ज्यादा जाने का एक ही रीजन है, हमें स्पोर्ट्स साइंस के पीछे काम करना चाहिए इंडिया को। सर जैसे आपने ये कहा, ये मैंने काफी जगहों में भी मैंने भी ये कहा है सर, और मैं भी आज ये कहना चाहूंगा कि इसके पीछे हमारा पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम सब कुछ हमारे गवर्नमेंट को भी हम दायी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी हम देना नहीं चाहेंगे। हमारा पेरेंट्स का भी सबसे बड़ा रोल रहता है, और वो उनका भी काफी सारी गलतियां हैं। जैसे कि वो धोनी सर का भी जो पिक्चर था, उसमें ये कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब हो जाओगे। तो आज की डेट में इसको स्पोर्ट्स ने बदल दिया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब। तो मैं सभी के आपके थ्रू, एनएसएस के थ्रू मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारा जैसे अभी तरुण सर ने कहा कि हमारा स्पोर्ट्स साइंस तो वीक है, इसमें मैं भी 100% श्योर हूँ, और इसको गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा स्पोर्ट्स साइंस अभी भी बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे जैसे आपने देखा होगा कि हमारे स्पोर्ट्स में, हमारा स्कूल्स में, हमारा एक सब्जेक्ट जो होता है कि स्पोर्ट्स का, जैसे कि पीटी का एक सब्जेक्ट होता है, बट उसको भी वो जो पीटी टीचर होता है उसको भी नहीं किया जाता है। वो उसमें क्या करते हैं, बच्चों को साफ सफाई में लगाया जाता है, बट उनको स्पोर्ट्स में नहीं किया जाता है। और जहां पर स्पोर्ट्स है नहीं, वहां पर ये किया जाता है कि उनको स्पोर्ट्स ना करा के उनको बोला जाता है कि अगर आप स्पोर्ट्स करेंगे तो हम आपको एब्सेंट लगा देंगे। मतलब ऐसे भी काफी जगहों में कंप्लेंट्स आए हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारा स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स को अच्छे से डेवलप करना चाहिए, और हर चीज को हमें गवर्नमेंट के ऊपर दोष देना नहीं चाहिए। हमें भी अच्छे से हमारा जो सर्कल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, और हमारा जो माहौल है, उसको हम कैसे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा स्पोर्ट्स में अच्छा से डेवलप होगा। और उसके साथ साथ हमारा गवर्नमेंट को भी स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो पीछे हैं, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि हम लोग मेहनत करने में पीछे नहीं है, क्योंकि इंडियन सबसे अच्छा मेहनत करने में आगे रहते हैं, और हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी रहता है। बट एक जगह पे जाके, जैसे कि आपने मैंने जितना एनालाइज किया है यूरोपियन के साथ, और हमारा जो इंडियन जो वेटलिफ्टर्स हैं, तो यूरोपियन सिर्फ वीक में सिर्फ 3 दिन ट्रेनिंग करते हैं, और हम लोग यहाँ पर पूरे हफ्ते में 5 दिन कंप्लीट कंटिन्यूसली 6 डेज हम ट्रेनिंग करते हैं। तो कंपेरेटिव, और 3 दिन में वो सिर्फ सिंगल ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग पूरे 7 दिन 2 ट्रेनिंग करते रहते हैं, मतलब 14 ट्रेनिंग होता है। सो ये हमारा डिफरेंट है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हमारा स्पोर्ट्स साइंस को डेवलप करना चाहिए, और हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है, उसको हमें देखना चाहिए और उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तरुण सर, और एक पॉइंट आया है कि हमारा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। मतलब
गवर्नमेंट और ये कैसे डेवलप कर सकते हैं करके। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यस इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने के लिए जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम है, वन स्टेट वन गेम जैसा ना, तो मुझे लगता है वो सक्सेसफुल रहेगा काफी हद तक, सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स में भी, क्योंकि एक स्टेट को एक गेम का जिम्मेवारी दिया जाता है तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जितना भी फंड्स है वो एक स्टेट में जाएगा एंड डेफिनेटली वहाँ अच्छा काम होगा उस स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि उस स्टेट को उसी डिसिप्लिन के लिए डेडिकेट किया गया रहेगा। तो मुझे भी लगता है कि ये वाला स्कीम होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए, ना कि सारे के सारे दिल्ली में ठूस दो, सारे के सारे या तो मुंबई में ठूस दो, है ना, बाकी स्टेट्स भी है। तो पूरा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है तो इस तरह का स्कीम पे और भी ज्यादा काम करना होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को। और मैं भी यही कहूंगा कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत सारे जगह पे काम कर रहा है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी देख रहे होंगे, हरियाणा, यूपी, पंजाब, इवन मेरा उड़ीसा गवर्नमेंट भी देखा होगा कि आपने दो अच्छे बड़े कॉम्पिटिशन्स अभी 2023 का वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप जो है वो भी ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग अभी अंदाज में डेवलप कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे स्पोर्ट्स इंडिया में का जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है और स्पोर्ट्स मैप है वो बहुत ही आगे जाएगा करके। There's one more question, like, is lack of equality a cause for less participation in Olympics or competition? मैं समझा नहीं, बताइए फिर से क्या हुआ। Sir, is lack of equality a cause for less participation in Olympics or competitions? Lack of equality in which terms? I didn't get that. Rishabh, you can unmute yourself and tell sir. Sir, he basically wants to ask in the sense of equality, like basically for the gender equality, that is equal opportunity a cause? Because like not equal opportunity is given to both male and females as of now. Is that also a cause that will affect? I think so. मुझे लगता है ये भी कुछ हद तक सही है, लैक ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि लड़कियों के लिए हमारे देश में आज भी उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना मेल्स के लिए। सच एज मैं आर्चरी की बात करता हूँ कि लड़का मैन आर्चर्स के लिए मिलिट्री से लेके हर जगह ज्यादा वैकेंसीज है, और मिलिट्री में तो ओनली मेंस के ही है। बाकी वुमेन्स के लिए पैरामिलिट्रीज है, पुलिस हो गया, ये सब हो गया, जो कि मेंस के लिए ऑलरेडी है वहां पे टीम्स, मेंस के लिए ऑलरेडी ऑप्शंस है। और जहां तक मुझे लगता है जो एकेडमीज वगैरह है वहां पे बहुत लिमिटेड एकेडमीज है हमारे देश में, जिसमें लड़कियां भी वहां पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, कुछ हद तक आप सही हो कि लैक ऑफ इक्वालिटी की वजह से भी पार्टिसिपेंट्स हमारा कम हो रहा है, क्योंकि लड़का जितना पार्टिसिपेंट्स गेम्स में रहता है उतना लड़कियां नहीं रहती है। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनको ट्रेनिंग लड़कों को जितना मिलने का वो रहता है ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी, उतना लड़कियों को नहीं मिल पाता है हमारे देश में। और एक सवाल है सर कि स्पोर्ट्स में मैनिपुलेट और पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में। देखिए ये गहरा मुद्दा है, इसमें देखिए हम स्पोर्ट्समैन है, ये चीज में फोकस ना करे तो ही बेटर रहता है। जो इस तरह का गंदा खेल खेलता है, मैं समझता हूँ कि वो एक तो खुद का अपना चेहरा खुद को नहीं दिखा पाएगा, दूसरा वो अपने देश से गद्दारी कर रहा होगा, तीसरा मुझे लगता है वो उतना ऊंचाई तक जा ही नहीं पाएगा जो भी इस तरह का षड्यंत्र करते हैं ना। बिकॉज हम सब ट्रेनिंग करते हैं अपने देश के झंडा को ऊपर रखने के लिए, और अल्टीमेट एम रहता है उसमें, सबसे टॉप एम रहता है ओलंपिक मेडल जीतना। अब इस तरह का पॉलिटिक्स और इस तरह का कुछ भी गलत काम, हमें वो अपना टारगेट अचीव करने में हमें मदद नहीं मिलेगा, और उल्टा नेगेटिवली वो रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे ना जाके, अगर आप एथलीट हो तो कंप्लीटली अपने ट्रेनिंग पे फोकस करें, क्योंकि अपना वो जो टाइम जो है जो एक ट्रेनिंग करने का, वो अगर इस तरह का पॉलिटिक्स में ना लगा के, या कहीं बातचीत भी हो रहे हो इस तरह का, तो उसमें इन्वॉल्व ना होके अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दे, क्योंकि टाइम किसी के लिए वापस नहीं आएगा।
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम भी काफी कभी कभी घुस जाते थे ऐसे चीजों में, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड ये टाइम जो है ना, आपका करियर बनाने का टाइम होता है जो आपने वेस्ट कर दिए होते हैं। तो इसके पीछे ना ही सोचे ना ही पढ़े। मैं भी यही कहूंगा कि देखिए, अगर जहाँ पर पॉलिटिक्स हो रहा है तो वहां पर जैसे कि अभी गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, या जो रेफरीज है या कोचेस है उसके लेवल पे हो रहा है, तो उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं। बट जैसे कि परफॉर्मेंस को लेके अगर कोई पॉलिटिक्स हो रहा है, तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि अपने आप को ऐसे मुकम में लेके चले जाओ कि आपके साथ कोई पंगा ले ही नहीं सकता, और इतना हार्डवर्क करो, इतना पॉजिटिव रहो और अपना 100% दे दो कि आपके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाए। और जैसे सर ने कहा कि पॉलिटिक्स के पीछे उसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, अपना मेहनत करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, और अपने गेम पे फोकस करते हुए और देश के लिए कुछ करने के लिए बढ़ते रहना चाहिए। और ये छोटे मोटे ये जो चीजों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसमें शॉर्टकट में कभी भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। सर, वी हैड अ क्वेश्चन अर्लियर। पैंडेमिक की वजह से जो स्क्रीन टाइम है स्टूडेंट्स का, इंडिविजुअल्स का, सब लोगों का, वो बहुत इंक्रीज हो चुका है। तो सर, इस सिचुएशन के अंदर जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको वापस कैसे बाहर लेके आया जाए? पैंडेमिक के टाइम पे मतलब वो जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी थे वो घट गए, आप ये कहना चाह रहे हो ना? वापस उसको कैसे लिया जाए? देखिए, ये इसमें कोई मोटिवेटर या किसी का जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको खुद को रियलाइज हो रहा है कि अगर ऐसा हो रहा तो आपको 2-3 दिन तो संघर्ष करना पड़ेगा और खुद से लड़ना पड़ेगा। और बॉडी बोलेगा कि बस कर, कुछ लेके जाना थोड़ी है यार, रेस्ट कर ले, मजे ले, है ना? पर ये सुनना नहीं होता है। एक सेल्फ मोटिवेटेड आदमी वही होता है या इंसान वही होते हैं जो अपने बॉडी का ना सुन के खुद का सुनते हो कि मैं क्या, बॉडी के कमांड में नहीं रहना है, खुद का कमांड में अपने बॉडी को रखना है। तो ये होता है सेल्फ मोटिवेटेड। अब आपको खुद को उस दर्जे में रखना है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या आपको हमेशा पीछे डंडा मारने वाला कोई चाहिए होता है ना? तो सेल्फ मोटिवेटेड का एक ही ये होता है कि नहीं, खुद का कमांड अपने कमांड में होता है अपना बॉडी, ना कि बॉडी के कमांड में आप होते हैं। तो ये ज्यादा पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इस चीज से लड़ना जरूरी है। तो आपको ये क्या होता है, आज का नया शब्द क्वारंटाइन है ना, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप करोगे उस समय। सर, वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कुणाल भारद्वाज। वो पूछ रहे हैं कि क्रिकेट भी क्या ऐसा बड़ा फैक्टर है क्या अदर स्पोर्ट्स में, मतलब कमी होना पार्टिसिपेंट्स की, क्योंकि सब लोग क्रिकेट में ज्यादा फोकस करते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश का मनपसंद खेल है। मैं मानता हूँ, मुझे भी पसंद है ये गेम, है ना? जब खेलने का मन करे मैं भी खेलता हूँ, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि हर गेम को एंजॉय करना चाहिए। और उसमें क्रिकेट सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। बाकी गेम भी खेलता हूँ 100%, फुटबॉल भी खेलता हूँ, है ना? तो क्रिकेट हमारे देश का मनपसंद गेम है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये कोई रीजन नहीं है कि क्रिकेट हमारा बाकी गेम को मतलब थोड़ा सा हानि पहुंचा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो क्रिकेटर बनने का सपना रखता है ना, उसका सपना मुझे लगता है ज्यादा टूटता है रादर देन बाकी स्पोर्ट्स जो टेकअप करता है। क्योंकि इतने ज्यादा मात्रा में लोग क्रिकेट खेलते हैं कि, लेकिन क्रिकेट में इंडियन टीम में खाली 11 लोगों का वैकेंसी होता है एंड स्टैंड बाय में 5-6, है ना? बाकी रणजी ट्रॉफीज वगैरह और ये सब स्टेट का टीम्स वगैरह, यूनिट्स का टीम्स वगैरह में चांस मिलता है। तो अब सोचिए, अपने लाइफ टाइम में इंडिया का टीम से टॉप 11 के अंदर आना, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। तो मुझे जहां तक लगता है कि हम दूसरा एंगल से देखते हैं, क्रिकेटर्स बनने के लिए जो उतरते हैं उनका सपना ज्यादा टूटता है रादर देन हमारा सपना क्रिकेट वालों ने तोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका सपना ज्यादा टूटेगा क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा फाइट है बाकी गेम्स से, मुझे लगता है। सर, वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम लोकेश। जो प्री ओलंपिक्स असिस्टेंस और पोस्ट ओलंपिक रिवॉर्ड है वो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, बट अभी करंट सिनेरियो में देखें तो दोनों डिजायर्ड लेवल पे नहीं, डिजायर्ड स्टेज पे नहीं है। सो सर, आपके क्या ओपिनियंस है इस पे? प्री एंड पोस्ट प्री ओलंपिक्स असिस्टेंस एंड पोस्ट ओलंपिक रिवॉर्ड।
pre-Olympic circumstances and post-Olympic rewards? Yes. ये बड़ा कठिन सवाल है, मुझे काफी अंदर घुसना पड़ेगा इसका। प्री ओलंपिक सर्कमस्टांसेस हमारे पास ऐसा, देखिए जो एक ओलंपिक लेवल में मेडल जीतने का सपना रखता है, तो ये सब चीज हम कम ही सोचते हैं। ये सब चीज नहीं सोचते कि हमारे पास क्या क्या चुनौती आ रहा है, क्या चुनौती नहीं आ रहा है। हम 24 घंटे अपना ट्रेनिंग्स पे ही ध्यान रहते हैं और क्या इंप्रूव करना है उस पे ही चर्चा होते रहते हैं अपने माइंड से या खुद से या अपने दोस्तों से। और पोस्ट ओलंपिक का तो देखिए, अगर जीतते हैं तो ऑब्वियसली वाह वाह होता है, और हारते हैं तो वी शुड एक्सेप्ट दैट एंड हमें सीखना चाहिए होता है। तो प्री और पोस्ट में मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ है एक स्पोर्ट्स का लाइफ में। अगर प्री ओलंपिक, मतलब आपका सवाल ना क्लियरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं आपको जवाब दूं। Lokesh, can you explain the question to sir? He might have network issues, so let's move on to the next question. So sir, next question is like children's को भी ऐसा होता है कि करियर में ऐसा स्पोर्ट्स चूज करना उसको, तो ये सही रहेगा अगर बच्चा बार बार फेल भी हो रहा है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में पर उसको इंटरेस्ट है? तो ये पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है सर, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे तो? इसमें मैं कहना रवि बताइए चाहूंगा ना। हाँ, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इस देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है कि जैसे कि 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, जब मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था, हम लोगों ने 19 बंदों ने एक समर कोचिंग कैंप से गेम स्टार्ट किया, बट आई एम द ओनली पर्सन जो इस लेवल तक पहुंच पाया। इवन जो 19 बच्चे ये किए थे, वो लोग सिर्फ स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे रुक गए, इवन वो उन्होंने मेडल भी नहीं देखा। सो इसमें यह है कि बच्चे के ऊपर छोड़ना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा कैसे सक्सेस हो रहा है और उसका मोटिवेशन कितना है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पेरेंट्स को, जैसे आपके थ्रू मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, साथ ही साथ उनको एजुकेट करना चाहिए कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। तो हमें एजुकेशन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा, अगर मान लीजिए कि हमारा एजुकेशन नहीं है फिर स्पोर्ट्स भी नहीं है, तो हमारा लाइफ जो है वो एक कांटे में झूलता रहेगा, तो हम कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जैसे कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का चलना चाहिए और स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन चलना चाहिए। तो मैं आपके थ्रू पेरेंट्स को, सभी के पेरेंट्स को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आपका बच्चा है उसको 100% सपोर्ट कीजिए, वो चाहे एजुकेशन में जाए या पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में जाए या किसी अदर एक्टिविटीज में जाए। तो उसको जो लाइन उसने चूज किया है उसमें 100% उसको सपोर्ट कीजिए और उसको एनालाइज करते रहिए और उसको मैक्सिमम टू बेस्ट उसको सपोर्ट कीजिए। और जैसे कि जहां चाहे स्पोर्ट्स में हो या कहीं भी, तो उसको उस लेवल का दर्जा दीजिए कि वो सक्सेस भी कर जाए। अगर वो फेल हो रहा है तो वो क्यों फेल हो रहा है उसके ऊपर भी सर्च करना चाहिए और आपकी और माँ बाप को भी देखना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ते रहना चाहिए और बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। Okay, sir. Sir, Mohul have one question. Mohul, you can unmute yourself. तो सर, आप दोनों ने जैसे बात की कि फिजिकल फिटनेस या रोज का एक घंटा एक्टिविटी का जरूरी है, सर उसके साथ साथ फिटनेस के लिए हमारी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने कौन सी डाइट फॉलो करी और हम लोगों को कौन सी डाइट बचपन से फॉलो करनी चाहिए, जिससे आगे जाके अगर कोई स्पोर्ट्स में जैसे पार्टिसिपेट करता है, तो सर जैसे ओलंपिक जैसे स्पोर्ट है तो सर मार्जिन बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो डाइट एक फैक्टर उसमें जैसे जिसको हम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर पाए। इसमें मेरा जो व्यू है, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए, आप कंपेयर मत कीजिए कि ओलंपिक्स लेवल पे, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मल एक सिविलियन, एक नॉर्मल सा सिविलियन को अगर नॉर्मल फिटनेस के लिए चाहे या एक कोई भी स्पोर्ट्स में वो अगर आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए
कि उनका जो डाइट प्लान है वो कितना कैलोरीज एक दिन में खा रहे हैं और कितना कैलोरीज वो एक दिन में बर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। और हमारा जो खाना जो, क्योंकि इंडियन का जो खाना है, इंडियन जो हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर का जो खाना है, उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, यही सारे बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन का जो है मेन, जो हमारा बॉडी में प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन का जो लेवल है वो बहुत ही कम रहता है। सो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा, हमें ओलंपिक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओलंपिक का लेवल जो है वो तो बहुत ही डिफरेंट होता है उनका, क्योंकि डिफरेंट गेम का डिफरेंट जो डाइट है वो डिफरेंट रहता है। बट एज ए सिविलियन, एज ए नॉर्मल फिटनेस पर्सन, अगर आपको एक फिट रहना है या कोई भी गेम को चूज करके एटलीस्ट आपके लाइफ में गेम कुछ करना है, देन आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए कि आप जितना खा रहे हैं वो कितना कैलोरीज आपको खा रहे हैं, एंड आप कितना एक दिन में आपने कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एंड कैलकुलेट करना चाहिए कि मैक्सिमम हमारे बॉडी में प्रोटीन, फाइबर्स ये जाना चाहिए, ना कि कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट्स, इसको हम ज्यादा इंटेक ना करें, इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इसमें स्पोर्ट्समैन का या एक सिविलियन का ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक हमारा लाइफ का एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं, और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसको हमें खुद को जानना जरूरी है। ओके सर, सौरभ सुमन हैज वन क्वेश्चन, लाइक सर वो पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कोई वर्ड या फिर ऐसा कोई मंत्र जो आप खुद को बोलते हैं जब आप compete कर रहे होते हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए, ऐसा कोई भी आप दोनों के ओपिनियन के हिसाब से। सर मैं पहले बोल देता हूँ, देखिए जैसे लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में, बट मैं अपने लाइफ में एक मूल मंत्र रखता हूँ। मेरी लाइफ में वैसे तो दो है, बट जो मेन है मेरा, मैं कभी भी सक्सेस के बारे में नहीं सोचता। मैं कभी भी मतलब मान लीजिए कि मैं अगर ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो मैं ओलंपिक्स का मेडल का टारगेट नहीं करता हूँ, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि जो ओलंपिक का परफॉर्मेंस है, अगर मैं उसको टच कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे मेडल आ जाएगा, राइट। अगर जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने एग्जाम से जाने से पहले आप पूरा साल भर आप पढ़ाई करते हैं, तब जाके आपको साल में एक बार एग्जाम देना पड़ता है, उसमें आप रिजल्ट अगर अच्छे से एग्जाम किए होंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, तो अगर एक दिन पहले पढ़ाई होंगे उसके हिसाब से मार्क आएगा आपका सेम। तो मेरा ये एक मूल मंत्र है कि लाइफ में कभी भी सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने आप को इतना मुकम्मल में लेके चले जाओ, इतना हार्डवर्क कर लो कि सक्सेस आपके पीछे भागे, ना कि आपको सक्सेस के पीछे भागे। सो ये मेरा लाइफ का फंडा है, इसको मैं अपने लाइफ में बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि कभी भी हार्डवर्क करते रहना, सक्सेस के बारे में नहीं सोचना और सक्सेस के पीछे मत भागना। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है। तरुण सर, आपके बारे में क्या आप बोल सकते हैं? मैं बेसिकली देखो खुद से चैलेंज होता है मेरा गेम, हमारा गेम ऐसे ये इंडिविजुअल लेवल का गेम है, टीम गेम नहीं होता है हमारा, होता है लेकिन हम ज्यादातर इंडिविजुअल्स पे इम्प्रूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं खुद से ही एक गोल सेट्स करता हूँ कि, और खुद से ही चैलेंज रखता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ, मुझे ये करना है तो मैं कितना कर पाऊंगा, और उसके लिए मैं 100% जाता हूँ। और सेल्फ टॉक्स हो गया, सेल्फ मंत्रा जो होता है ना, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल, इसमें आपको स्ट्रांग रहने के लिए। तो मैं उस रास्ते में जब निकल पड़ता हूँ कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसमें बहुत चीजों का ये रहता है कि पुश करना होता है खुद को, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, है ना। तो मैं साइकोलॉजिकली ज्यादा उसमें रहता हूँ, जो खुद को सेल्फ टॉक करके रखना, उससे क्या होता है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तो मैं अब ये होता है ना, 2-4 शब्द, यू कैन डू इट, ये सब आजकल ना एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से उड़ जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। कब तक बोलेंगे कि यू कैन डू इट, फिर ऐसा लगता है ना वो आदत हो गया तो बॉडी भी वैसे ही काम करता है, ये तो बोलता रहता है ना। तो ऐसे नया चीज करते रहना होता है। कभी कभी तो मैं खुद को गाली भी देता हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मन में खुद को गाली देके भगाता हूँ, चल है ना। अब वो गाली हम दे नहीं सकते, आपको सबको पता है कि खुद को क्या गाली देने से किक लगेगा। तो ऐसा शब्द ढूंढना है कि जिससे आपको किक लगे, है ना। एक किक मूवी का एक वो है ना डायलॉग, ऐसा चीज ढूंढना है खुद को कि वो काम करने में आपको किक लगे, आपको वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे किक लगता है कि जब मैं खुद को गाली देता हूँ
तो ये सब करता हूँ मैं। सर आप दोनों की कोई बेस्ट मेमोरीज हो ओलंपिक से रिलेटेड या फिर कॉमनवेल्थ में? मेरा कहना चाहूंगा कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स एक दिन पहले, मेरे कंपटीशन का एक दिन पहले हमारे 62 कैटेगरी में 2 मेडल्स मिस हो गए थे। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 मेडल्स आएंगे, बट दोनों के दोनों मेडल्स मिस हो गए थे 2010 कॉमनवेल्थ गेम, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो फिर उसका नेक्स्ट डे 69 कैटेगरी का मेरा कंपटीशन था। तो पूरा देश का, क्योंकि मैंने उस टाइम मैंने एक पूरे मीडिया के सामने मैंने ये कमिटमेंट किया था कि मैं सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं दूंगा, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक करके मैं गोल्ड मेडल दूंगा, ये मैंने मीडिया को कहा था और ये मैंने प्रॉमिस किया था। तो जैसे ही हमारा 2 मेडल मिस हो गए तो सारे मीडिया का फोकस जो है वेटलिफ्टिंग का रवि के ऊपर आ गया था, मतलब जैसे मेरे ऊपर। इवन फेडरेशन भी मुझे कहने लगा था कि रवि हमारा 2 मेडल्स मिस हो गए और तुम्हारे ऊपर बहुत ही आशा है कि हम गोल्ड मेडल लेंगे। तो उस टाइम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था और बहुत ज्यादा प्रेशर था। इवन रात को मैंने रोने लगा था। एक दिन पहले, कंपटीशन से पहले मैं थोड़ा सा कमजोर हो गया था क्योंकि पूरे देश का फोकस मेरे ऊपर था, मतलब इवन मीडिया, फेडरेशन, मेरे दोस्त लोग, पूरे वेटलिफ्टिंग फैमिली। तो मैंने ये चीज मैंने मम्मी को फोन करके मैंने रात को बताया था कि कैसे हैंडल करूं ये सब, मुझे ऐसे ऐसे फोन्स आ रहे हैं। तो मम्मी ने उस टाइम यही कहा था कि तूने पूरे 2 साल, मतलब मैं 2009 से 2010, सिर्फ ये जो 2 साल मैंने 2 दिन घर गया था, मतलब 2 साल में मैं सिर्फ 2 दिन घर गया था, वो भी घर नहीं पहुंचा था, एयरपोर्ट में मैंने मम्मी को मिला था और वापस आ गया था। सो मैं यही कहूंगा कि ये जो मम्मी ने कहा था कि ये जो तूने 2 साल मेहनत किया है उसको फोकस कर और अपना कंपटीशन के बारे में सोच, फोन स्विच ऑफ कर और सो जा। तो जैसे ही मेरा कंपटीशन खत्म हुआ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का, आप बिलीव नहीं कर सकते, मैंने 5 रिकॉर्ड के साथ मैंने 2010 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया था। इवन जो मेरा फर्स्ट टाइम गेम्स मेडल था, मैंने गेम्स रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। तो वो एक अलग लेवल का मेरा लाइफस्टाइल, मतलब लाइफ था और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज जो भी कुछ हूँ मैं 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से, और वहां से मैं काफी इंस्पायर हुआ हूँ, मतलब काफी मुझे सपोर्ट मिला है। तो वो एक मेरा मेमोरेबल डे था और उसमें मैंने काफी कुछ सीखा हूँ और काफी कुछ जाना भी हूँ। सर आपका कैसा रहा था सर, कुछ ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स? नहीं, सवाल क्या था उस टाइम ना, मेरा ना नेटवर्क उड़ गया था। ओके, एक्चुअली सर ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई ऐसा मेमोरेबल कंपटीशन जो ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ या एशियन, कोई ऐसा सबसे अच्छा बेस्ट कंपटीशन? बेस्ट मोमेंट सर आपका कोई? जो मेमोरेबल टूर्नामेंट मेरा पहला ही टूर्नामेंट था जो 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे थे हम लोग। वो 2004 एथेंस ओलंपिक का क्वालिफाइंग मैच भी होना था वहां पे। ये टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में होना था 2003 का। वो मेरा लाइफ का सबसे पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। बहुत एक्साइटेड था ना, 1 महीने पहले से नींद आना छूट गया था, वाह, है ना। उस टाइम 2003 में, अब मुझे मेरा थॉट्स में ये आता था कि मुझे अमेरिका जाने मिलेगा, मुझे यूएस देखने को मिलेगा ना। फोकस ये नहीं था कि वहां पे गेम खेलना है। 2003 में तो ये एक मेमोरेबल टूर्नामेंट इसलिए रहा कि इतना लंबा फ्लाइट मैंने जिंदगी में कभी नहीं चढ़ा था। बॉडी पूरा गिव अप कर गया था पहुंचते पहुंचते। तो इस लिहाज से ये मेरा मेमोरेबल टूर्नामेंट रहा। और दूसरा मेरा पहला टूर्नामेंट था, तो मुझे ईच एंड एवरी शॉट्स मुझे पता है कि वहां मैंने कैसे परफॉर्म किया। बाकी जितने भी टूर्नामेंट्स खेले मैंने, 3 एशियन गेम्स खेला, 3 ओलंपिक गेम्स खेले, 3 सेफ गेम्स खेले, काफी सारे वर्ल्ड कप्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, लेकिन मुझे ऐसा कोई मेमोरेबल टूर्नामेंट मिला नहीं जितना 2003 का जो पहला टूर्नामेंट, जो मेरे दिमाग में आज भी फ्रेश है। वो उसको बीट नहीं कर पाया कोई भी टूर्नामेंट। तो मेरे तरफ से वही एक मेमोरेबल टूर्नामेंट था जो मेरा कमर बिठा दिया था मेरा एक्साइटमेंट ने, कि पहुंचते पहुंचते इतना लंबा फ्लाइट के चक्कर में। तो मतलब मैं समझता हूँ कि वो एक एथलीट का या एक स्पोर्ट्समैन का सबसे हैपनिंग टाइम होता है, जो पहला टूर्नामेंट आप इंडिया टीम के तरफ से जाते हैं और पीछे इंडिया लीग के। तो ये सबसे ज्यादा मेमोरेबल टूर्नामेंट रहता है मोस्ट ऑफ द एथलीट्स, एंड मेरा भी यही रहा है।
थैंक यू सो मच, ग्रेट टू हियर दैट सर। एक और क्वेश्चन है लाइक कि मार्केट में कई सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, प्री वर्कआउट, BCA, ये रुपेंद्र की तरफ से क्वेश्चन है सर, तो वो लेना सही है या आप लेते हैं, कभी लिया हो आपने तो आप प्रेफर करेंगे वो सब? ये तो रवि इसके बता बारे में मैं पाएगा। ही रवि। बताना सही रहेगा। यस सर, यस सर। हाँ हाँ। तो एज अ वेट लिफ्टर मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए, सप्लीमेंट एक ऐसा चीज है कि हमें सबसे अच्छा एडवाइस जो है उनका एडवाइस लेके लेना चाहिए। और जैसे कि न्यूट्रिनिस्ट हो गए, किसी का भी अच्छे से डॉक्टर का ओपिनियन लेके लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, सप्लीमेंट एक ऐसा चीज है कि इंडिया में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आपने देखा होगा, दिल्ली में 7 करोड़ का रॉ मटेरियल फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया था, जो कि पूरे इंडिया में उसको अगर सर्कुलेट किया जाता तो सम 100 करोड़ का अगर कुछ ऐसा कुछ होता। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सप्लीमेंट तो लेना चाहिए, बट प्रॉपर डाइटिशियन के एडवाइस लेके लेना चाहिए। सेकेंड, मैं यही कहूंगा कि आप किस लिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है। आप किसके लिए ले रहे हैं? अगर आप प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ हटके करना चाहते हैं, देन आपको स्पोर्ट्स में सप्लीमेंट्स यूज करना चाहिए। इवन अगर कोई जिम कर रहा है या कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, देन एक प्रोटीन तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में हम जितना खाना खाना चाहिए, जितना प्रोटीन हमें खाना चाहिए, हम खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें प्रोटीन तो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी जो सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गया, या BCAA हो गया, या EAA हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, जो भी बाकी सारी जो भी सप्लीमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको जान के लेना चाहिए। मतलब अच्छे से अच्छा एडवाइस किसी का लेके ही लेना चाहिए। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी ऑनलाइन सप्लीमेंट्स परचेज ना करें, क्योंकि ऑनलाइन मोस्टली फ्रॉड होते हैं, मैक्सिमम फेक सप्लीमेंट्स मिलेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सप्लीमेंट जो है, अगर आप प्रॉपर स्पोर्ट्समैन है और प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर है, मतलब गाइडेंस के अंदर है, देन आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं करना चाहिए। तरनदीप सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं, सप्लीमेंट्स के बारे में रवि मुझसे 100% ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो टोटल एक सप्लीमेंट्स का मतलब मुझे लगता है कि एक पावर गेम के जो एथलीट्स होते हैं ना, जो वेटलिफ्टर्स, उनके पास मतलब 100% नॉलेज होता है। तो ये सब बेटर है। मैं भी कभी कभी प्रॉब्लम होता था पहले तो मैं भी वेटलिफ्टर से पूछता हूँ, पहले भी पूछता था, आज भी वेटलिफ्टर से पूछता हूँ कि भैया ऐसा ऐसा है तो बताओ क्या करना है। Okay, so thank you so much, sir. Now we are done with the questions. Now I would request our honorable principal, sir, to flourish blessings and present gratitude to our speakers of the webinar. Dr. Anil Sardhana, sir, you may take over. हाँ बेटा, मैं एक मिनट, यस सॉरी बेटा, मैं कुछ काम भी कर रहा था। हाँ, मैंने सुना आप सब लोगों का, बहुत ही अच्छा, और थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। आई वाज हियर, आई डिडंट गो, बट इन बिटवीन आई वाज डूइंग अदर वर्क आल्सो। अभी भी मेरे सामने एक गेस्ट बैठे हुए हैं, सो माय बेस्ट विशेस टू संदीप एज वेल एज आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन टू बोथ द। एक को तो मैंने पहले भी सुना हुआ है, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है राय साहब से, वो जो नॉर्थ ईस्ट से है। तो आप लोग करिए, मैं एक्चुअली थोड़ा काम में इन्वॉल्व था, तो इसलिए आप किस बारे में कुछ बात करते बोले बेटा? Sir, anything you would like to say as the closing remark for the speaker? मैंने बस my greetings बेटा, my greetings for all of you and my good wishes and blessings। और जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हैं मुझे बता दें। वो कुछ बता रहे थे संदीप के डायरी के लिए, या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए कॉलेज से, या और कुछ हेल्प चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, आई एम ऑलवेज देयर। आप उसको ग्रांटेड माने, यस माने हमेशा। आप बिल्कुल चिंता न करें कि भाई उसमें परेशानी आएगी। हर चीज जो है आपको समय से पहले थ्रू संदीप जी पहुंचा दी जाए। ठीक है बच्चों? थैंक यू प्लीज गो अहेड, एंड जब थोड़ा खुलता है या थोड़े बच्चे करके मुझसे आगे मिलें कॉलेज में, एंड आई विल मीट देम एंड विल स्पेंड सम टाइम विद देम। ठीक है?
थैंक यू बेटा. Thank एंड you. थैंक्स टू स्पीकर्स, और उन्होंने हमारे लिए समय दिया, बहुत खुशी हुई. और जाना कोट भी किया उन्होंने मेरे को कि मैं कह रहा था कि सबको यंग दिखना चाहिए. यस, अगर आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आप जो है अच्छे लगेंगे और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन उसके लिए अच्छा खाना खाना है, और गुड क्वालिटी का, मतलब कि बाजार के बर्गर वर्गर ज्यादा नहीं खाने हैं. थोड़े बहुत बच्चे खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खाना है. और फ्राइड फूड ज्यादा नहीं खाना है, नेचुरल फूड खाना है. अगर आप नेचुरल फूड खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, बिजी रखेंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप हमेशा अच्छे दिखेंगे. वैसे तो आप बच्चे लोग हैं ही बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे दिखेंगे. माय गुड विशेस टू यू. Thank you, sir, and a special thanks to our speakers for the day for this enlightening session. Your words truly inspired us, and we really hope the audience found them valuable too. Now we would request our program officer, Mr. Sandeep Kumar, sir, to present a vote of thanks and closing remarks. Yeah, thank you. Good evening to one and all present here. Honorable guest speakers, Mr. Tarundeep sir and Mr. K. Ravi Kumar sir. Respected Dr. Neil Sadhana sir, Principal Syed Bhagat Singh College, and all the participants. I extend my heartiest gratitude to our honorable guest speakers who have taken time out of their busy schedule to grace the occasion. Thank you, champions. It was really an extraordinary and sensational feeling to witness Olympians and nations treasure and gain some life-changing knowledge. It has been an absolute honor to listen to you. Thanks for sharing your insight and life experience with all of us. I also extend my appreciation to Mr. Devan Soni and his team to organize this wonderful webinar. A special thanks to our principal, Dr. Anil Sadhana, for providing all necessary supports to organize this webinar. At last, I would like to express my acknowledgement to all the esteemed delegates, organizing team, volunteers, and participants of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. Thank you all. Jai Hind. Presenting India, Bhavina Patel. She's been the story to talk about, bringing pride to the mass.